देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। जाएंगे हम अपने देश, सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। जाएंगे हम अपने देश। दुख जो हमारे वहाँ, दुख जो हमारे यहाँ ना होंगे फिर वहाँ। सारे दुखों का अंत होगा, सारे दुखों का अंत होगा। दुख के ये आंसू यीशु पोंछेगा, दुख के ये आंसू यीशु पोंछेगा। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। जाएंगे हम अपने देश। मन्ना लगाए यहाँ, जाना है हमको वहाँ। मन्ना लगाए यहाँ, जाना है हमको वहाँ। यहाँ के सुखों का अंत होगा, यहाँ के सुखों का अंत होगा। वहाँ के सुखों का अंत न होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। जाएंगे हम अपने देश। आए गई
जो जल रहा था प्रभु की पावन वेदी पर, जलते जलते मिट गया है वो, जग ज्योति में समा गया है। दीपक जो जल रहा था प्रभु की पावन वेदी पर, जलते जलते मिट गया है वो, जग ज्योति में समा गया है। कलीसिया आहें भर रही है बलिवेदी, रो रही है आज कलीसिया, आहें भर रही है बलिवेदी, आहें भर रही है बलिवेदी। दीपक जो जल रहा था प्रभु की पावन वेदी पर, जलते जलते मिट गया है वो, जग ज्योति में समा गया है। सच्चिद है आज आपका सुस्वागत के लिए, स्वर्गीय यरूशलेम सच्चिद है आज आपका सुस्वागत के लिए, आपका सुस्वागत के लिए। दीपक जो जल रहा था प्रभु की पावन वेदी पर, जलते जलते मिट गया है वो, जग ज्योति में समा गया है। स्वर्गीय मुकुट है आपके सामने, कर्म भूमि के है विजेता, स्वर्गीय मुकुट है आपके सामने, स्वर्गीय मुकुट है आपके सामने। दीपक जो जल रहा था प्रभु की पावन वेदी पर, जलते जलते मिट गया है वो, जग ज्योति में समा गया है।
of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. It is with hearts filled with deep affection and sorrow we have gathered here to bid a tearful farewell to our beloved sister Prema Dodiar, whom the Lord has called to Himself to be with Him eternally. We express our heartfelt condolences to all FSMA sisters and the bereaved family members, especially to Father Arvind, Father Arun, Mr. Anil, her brother, her sisters, and all family members. Sister Prema Dodiar was the daughter of late Mr. Patrick Dodiar and late Mrs. Elizabeth. Among their children, 11 girls and 2 boys, they offered Alfonsa very generously for the service of God's kingdom. Alfonsa, who took on the religious name Sister Mary Prema, was born on the 20th August 1961 at Tandla. She was brought up in a very fervent Catholic family. So one can truly say that the seed of her religious vocation was sown at home by her pious parents. Her 2 nephews, Father Arvind and Father Arun, too, drew inspiration from their aunt and have dedicated their service in the vineyard of the Lord in the diocese of Udaipur, and both of them are present with us to celebrate this Holy Eucharist. Sister Prema decided to dedicate herself to the Lord at the age of 22. She arrived Mau on the 8th of July 1983, and after a period of initial formation as candidate, postulant, and a novice, she pronounced her temporary vows on the 8th of June 1987. Thus, novice Alfonsa came to be known as Sister Prema Dodiar. Endowed with a deeply spiritual nature, Sister desired to give herself totally to God, and this mindset characterized her personality all through her life. Sister made her perpetual commitment in 1993. Sister worked in Unai and Japatra in MP, Mekelpura, Madri and Jaipur in Rajasthan, Deng and Ratanpurwa in Bihar. After completing her initial studies, she was sent for teachers' training to Mahila Vidya Sharma Vihar, Khandwa. Sister Prema dedicated her life to educating the poor children. Most of her life was spent in the mission stations where students, parents, parishioners loved her sincerely. She was a strict teacher, but very gentle and compassionate at heart. She was a hard-working person and put with all sorts of difficulties
joyfully for the sake of God's mission. Sister Prema was a great missionary, and her services at Deng, Mikilpura, Ratanpura, Madri and Chapadra were very much appreciated. Her heart went out to the poor and the needy. She had beautiful relationship with the people. In Madri, she had worked very hard in order to bring up the school to the high school level. She went pillar to post to get all necessary documents ready for the affiliation of the schools. Sister has served in different capacities as superior, teacher, headmistress. Her commitment, loving dedication to the entrusted duties and responsibilities, friendly and cheerful dealings with others won her many friends. Towards the end of her life, she spent most of her time in prayer and contemplation. Except for allergy cold, Sister Prema enjoyed good health all through her life. When she was serving at Ratanpura, she complained about her diminishing eyesight. She was immediately brought to Jaipur for treatment. Losing eyesight was due to white fungus in her cornea. During her eye treatment, she disclosed about a lump that she noticed in her body. She was taken to Fortis Escort Hospital, Jaipur for investigations, and it was diagnosed that she was suffering from advanced stage of cancer. Hence, the operation could not be done. Thereafter, she underwent chemotherapy and radiation from Bhagwan Mahavir Cancer Hospital, Jaipur. Since she was losing balance while walking and started falling down, she was shifted to Maria Bhavan, Titri, and she continued her treatment regularly from Gitanjali Medical College, Udaipur. The doctors treating her advised the sisters to keep her at home and give her palliative care, making her days comfortable. Even though she was going to pain all over the body, she never complained. A month ago, she went home and spent some time with her loved ones. Her brother, Mr. Anil Dodia, nephews Father Arvind, Father Arun, and other family members frequently visited her at Maria Bhavan. Their presence, prayer, and moral support gave her the much needed comfort and solace. Upon returning from home, she had dry cough. She complained of difficulty in breathing, and under the supervision of the doctors, she was on oxygen support for a week. On 1st March, her condition began declining and she was administered sacrament of the sick and also received the sacrament of reconciliation, and she passed away peacefully to her Lord at 3:30 p.m.
May she rest eternally with the risen Lord and enjoy heavenly peace. We are deeply grateful to Right Reverend Bishop Dev Prasad Ganava, who visited Sister Prema and strengthened her through his prayers. Thanks to Reverend Father George Sharma, the Vicar General, for being the main celebrant of this Eucharist, Holy Eucharist, and to the concelebrating priest, especially Father James, parish priest, Father Arvind, and Father Arun. We express our deepest sympathies to Mr. Anil, Sister Prena's brother, and her sisters, and all other sorrowful members who are present here with us to join in her final journey. May the Lord console all the bereaved family members. We also appreciate the presence of the religious sisters, lay faithful with us, to pray for Sister Prema and to bid farewell to her. As we gaze at the peaceful countenance of Sister Prema, we pray that she enjoys the heavenly peace in the company of angels and saints. May she intercede for all of us. पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साक्ष्य आप सबको प्राप्त हो। आदरणीय फादर अरविंद, फादर अरुण, फादर जेम्स, फादर्स, सिस्टर प्रेमा के परिजनों, प्रिय भाइयों और बहनों, हम सब सिस्टर प्रेमा की अंतिम यात्रा में भाग लेने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सर्वप्रथम मैं बिशप साम जी की ओर से, संपूर्ण डायसिस की ओर से, यहाँ उपस्थित सभी फादर लोगों की ओर से अपनी संवेदना परिवार को या फिर समय कॉन्ग्रीगेशन को प्रकट करना चाहता हूँ। ईश्वर सिस्टर प्रेमा को आनंद विश्राम प्रदान करे। अभी अभी हमने सिस्टर के जीवन के बारे में सुना, सुंदर जीवन। ईश्वर ने सिस्टर को इस परिवार के लिए, समाज के लिए, कलीसिया के लिए प्रदान किया है, और उस जीवन जो प्रभु ने उन्हें दिया है, प्रभु ने वापस लिया है। ईश्वर को धन्यवाद। सिस्टर के द्वारा जहाँ पर सिस्टर ही उनके वहाँ के लोगों को, हम सबको ईश्वरीय कृपा मिली है, उनके लिए हम धन्यवाद दें और प्रार्थना करें उसके लिए स्वर्ग का द्वार खोल दे, ताकि वह उस लोक में प्रवेश करे जहाँ मृत्यु नहीं बल्कि परमानंद विलासता है। हमारा लक्ष्य स्वर्ग है। हर मृत्यु हमसे ये कहते हैं कि तुम्हारा अंतिम स्थान वह स्वर्ग है। क्या मैं उसके लिए तैयार है? सिस्टर ने अपने जीवन में अपनी बीमारियों को, दुखों को, कष्टों को खुशी से स्वीकार किया और मुस्कुराते हुए अपने जीवन के संघर्षों को सामना किया। जरूर कल ईश्वर सिस्टर से ये कहते होंगे, प्रिय पुत्री तुम मेरे पास आओ। क्या आप और मैं इस बात सुनने के लिए तैयार हैं? क्या हम भी ईश्वर के प्रिय पुत्र और पुत्री कहने के लिए योग्य हैं? आइए हम पश्चाताप करें और अपने जीवन को प्रभु की ओर मोड़ने के तैयार हो जाए। तो पश्चाताप करने वालों को क्षमा प्रदान करने आया है। हे प्रभु दया कर,
तू पापियों को बुलाने आया है, हे क्रिस्त दया कर। तो पिता के दाहिने विराजमान हो हमारी विनती करता है, हे प्रभु दया कर। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तेरी सेविका सिस्टर प्रेमा ने क्रिस्त के प्रेम से प्रेरित होकर मुक्ति का मार्ग अपनाया था। जब तू अपनी महिमा में प्रकट होगा तो इनकी आत्मा तेरे राज्य में अपने भाई बहनों के साथ तेरा दर्शन पाकर आनंद मनाए। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ। इसके बाद मृत्यु नहीं रहेगी। मैं यूहन्ना में एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी देखी। पुराना आकाश तथा पुरानी पृथ्वी दोनों लुप्त हो गए हैं और समुद्र भी नहीं रह गया है। मैंने पवित्र नगर नवीन यरूशलेम को ईश्वर के यहाँ से आकाश से उतरते देखा। वह अपने दुल्हे के लिए सजाई हुई दुल्हन की तरह अलंकृत था। तब मुझे सिंहासन से एक गंभीर वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, देखो, यह है मनुष्यों के बीच ईश्वर का निवास। वह उनके बीच निवास करेगा, ये उनकी अपनी प्रजा होंगे और ईश्वर स्वयं उनके बीच रहकर उनका अपना ईश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। इसके बाद न मृत्यु रहेगी और न शोक, न विलाप और न दुख, क्योंकि पुरानी बातें बीत चुकी हैं। तब सिंहासन पर बैठने वाले ने कहा, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। मैं प्यासे को संजीवन जल के स्रोत से मुफ्त में पिलाऊंगा। यह विजयी की विरासत है। मैं उसका ईश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सदा तुझे चाहा, न मेरे कहीं भटकूं, तू मेरा चरवाहा। जहाँ हरित उपवन, वहाँ मुझे लिए चलो। जहाँ बहे
हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने राज्य के रहस्य को मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु ने कहा, हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हाँ पिता, यही तुझे अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़कर कोई भी पुत्र को नहीं जानता। इसी तरह पिता को कोई भी नहीं जानता, केवल पुत्र जानता है, और वही जिसके लिए पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करे। थके बांधे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। प्रभु ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, हम इंसान का जीवन ये सिक्के के दो पहलू के सदृश है। ये सिक्के में देखेंगे हेड एंड टेल, जिसके द्वारा ये चलता है। इंसान के जीवन के दो पहलू, एक तरफ जन्म और दूसरी तरफ मरण। जन्म और मरण के ये दो पहलू, ये किसी के लिए भी अपवाद नहीं है। सुख हो दुख हो, दोनों साथ में लेकर चलना है। इंसान जब जन्मता है तो रोता है, लेकिन जो वहाँ मौजूद रहते हैं वे हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, खुशी मनाते हैं। लेकिन इंसान जब मरता है वो शांत होता हुआ इस धरती से विदा हो जाता है, और जो वहाँ मौजूद रहते हैं वे रोते हैं, आंसू बहाते हैं, उदासीन का प्रकट करते हैं। ये सिक्के के दो पहलू इस पृथ्वी तक ही सीमित है। आज के पहले पाठ में जो प्रकाशन ग्रंथ से लिया गया है, जिसमें कहा गया है, सिंहासन पर विराजमान व्यक्ति ने कहा, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। सिस्टर अल्फोंसा, जिन्होंने ग्रामबन बनने के बाद प्रेमा नाम लिया, इस पृथ्वी पर ये जीवन के दो पहलू जन्म मरण समाप्त कर अपने निर्धारित सीमा के आधार पर प्रभु के पास ली गई है। मैं तो ये विश्वास करता हूँ कि हर इंसान का के जीवन की सीमा लिखी गई है। हम कितना ही दुख मनाए, लेकिन वो सीमा तो हम पार नहीं कर सकते। कोई बचपने में चला जाता है तो कोई जवानी में, कोई अधेड़ उम्र में तो कोई वृद्धावस्था में। बीमारी हो या दुर्घटना, ये तो सब एक आड़ है, एक कारण है, एक बहाना है इस धरती पर से जाने का, लेकिन वे चले जाते हैं। इंसान चला जाता है, लेकिन यादें
रह जाती है। सिस्टर अल्फोंसा प्रेमा हमारे बीच में रही, अब से नहीं रहेगी। लेकिन ये यादें बनी रहेगी। सिस्टर प्रेमा श्री पैट्रिक डोडियार व एलिजाबेथ के परिवार में, जो एलिजाबेथ हमारे गांव की, मेरे गांव की, इनकी माँ मेरे गांव की, बड़ा मस्का की, उनके और पहली माँ के मिला करके 13 संतानें, 11 बहनें और 2 भाई, जिनमें से अभी 4 बहनें और 1 भाई जीवित है, जिनमें 3 बहनें और 1 भाई तो यहाँ मौजूद यही। सिस्टर अल्फोंसा को प्रभु की बुलाहट 1983 में मिली। फादर बसील वसुनिया यहाँ मौजूद है, वे मुझे कह रहे थे कि गांव तो सटे हुए हैं, गुड़ा और कड़वापाड़ा, तो दोनों ने एक ही दिन, एक ही समय पर घर छोड़ा था प्रभु की सेवा के लिए। एक कॉन्वेंट और दूसरा सेमिनरी। मैं सिस्टर को वैसे नहीं जानता था। जब 1993 में उनके आजीवन व्रत धारण का समारोह थानला में रखा गया, उस समय इस समारोह का क्वायर कंडक्ट करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था। तब से जब कभी ये सिस्टर मिलती थी, पिछले 32 वर्षों में जब कभी मिली, इनके जीवन से, इनके स्वभाव से, इनके व्यवहार से, इनके कार्यों से मैं बहुत प्रभावित हुआ। सबसे पहले इनका हंसमुख चेहरा और प्रसन्नचित्त जीवन आकर्षण का केंद्र था। कभी उदासीन चेहरा दिखाई नहीं दिया। कठिन परिश्रम का उन्होंने ठान लिया था और इसलिए जब मादड़ी में थी, ये स्कूल के अपग्रेडिंग का कार्य करना थोड़ा कठिन हो रहा था। मेरे पास कई बार आती थी। उस समय मैंने देखा कितना इनकी लगन थी, तमन्ना थी कि इस कार्य को पूरा करें। जो जिम्मेदारी उन्हें मिली थी, उस जिम्मेदारी में उसके प्रति वे कठिन परिश्रम से निष्ठावान रही। अपनी बुलाहट के प्रति कर्तव्यनिष्ठ बनी रही। एक बार जैसे वो आई मादड़ी से ही कुछ काम था, तो मैंने पूछा कि आज तो आप फतेहपुरा, चितड़ी सब मिल करके कल तक जाएगी। नहीं, आज जाना है, आज हमारा होली आवर है, आज हमारे ये स्पिरिचुअल ड्यूटी है। कितने अपने अंतकरण से कितनी कोशिश थी कि ये जो धर्मसंगी जीवन को किस तरह से आना है। अपने धर्मसंगी जीवन से वो अपने अन्यों के लिए तो थी, लेकिन अपने खुद के परिवार के लिए प्रेरणादायक थी, जिसका फल हम देख रहे हैं। उनके 2 भानेज, फादर अरुण और फादर अरविंद। वो आज मैं हमेशा इनको कभी बोला नहीं हूँ, आज बोल देता हूँ। कभी भी ये सिस्टर मिली मुझे तो इनके बारे में पूछती थी, कैसे कर रहे हैं,
तो मैं उनको बोलता कि बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, अरुण ने ये कार्य किया, वो कार्य किया, अरविंद ने ये कार्य किया, खूब प्रसन्न। यानी कि जो पुरोहित है, जो धर्म बहने हैं, उनके जीवन से कुछ अच्छा निकलना उसके लिए प्रसन्नता का कारण था, प्रेरणा स्रोत थी। उनके लिए ही नहीं, जो भी धर्म बहनें थी इनके साथ में या नहीं रही, कभी भी उनके मुख से मैं सुनता था हमारी बहन है, हमारी सिस्टर है, हमारी सिस्टर है। यानी कि एक प्रेम उनके प्रति बना हुआ था। हमें दुख है हमारे स्वभाव के कारण, चाहे हमारी समझ की कमी के कारण या मानव कमजोरी के कारण, जिससे हमको यह सहना कठिन हो जाता है कि प्रत्यक्ष रूप से ये हमारे साथ सबसे नहीं है। और प्रभु यही बात हमें समझाते हैं। इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा करके मैंने नीरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। ये प्रभु का कहना है, हम सबों की, जिसकी समझ से हमें मजबूती मिलती है। 1994 में जब फादर पास्कल गुजर गए, उनकी दफन विधि अम्बापाड़ा में हुई और उसके बाद हम मिशन कप्पाम में खड़े थे। फादर जॉन सुनी बुजुर्ग फादर थे, वो मेरी ओर देखे और उन्होंने कहा, क्या सोच रहे हो? तो मैं उनकी तरफ देखा, फिर बोले, क्या सोच रहे हो? अरे यो जीती जो आप हारी जा। मैं सोचता हूँ उन्होंने सही बोला। सिस्टर प्रेरणा आज जीत गई। हम जो यहाँ बैठे हुए हैं, हम इस पृथ्वी पर हरे हुए हैं। बहुत हमारे जीवन की विजय का लक्ष्य हमें हासिल करने के लिए देता है। सिस्टर प्रेमा विजय हो गई है। हमें लगता है कि ये इनका सब यहाँ है, लेकिन प्रभु के सामने अभी इस क्षण या वहाँ पर ये सुसज्जित दुल्हन की तरह और भोले अपने जीवन के भोलेपन के पुरस्कार पा रही है। आइए हम उनके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि ये सिस्टर ऐसे वैसे धरती पर से नहीं गई है। प्रभु ने बहुत समय दिया मुझे तैयारी का, मैं तैयार हूं और वह तैयारी के साथ गई, इसलिए गए। आइए हम उनकी आत्मा शांति के लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु उन्हें अनंत विश्राम प्रदान करे। हे स्वर्गीय पिता, आज हम अपनी माता कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं कि हमारे संत पिता फ्रांसिस, सभी धर्माध्यक्ष, पुरोहितगण और सभी धर्म बहनों जो ईश्वरीय जीवन बिता रहे हैं, हमेशा ईश्वरीय संदेशवाहक बन सके, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, जो बपतिस्मा ग्रहण कर प्रभु यीशु के साथ स्वर्ग में महिमान्वित हुए हैं, आज हम विशेषकर सिस्टर प्रेमा के लिए प्रार्थना करते हैं कि स्वर्ग में ईश्वर के साथ सहभागी होकर
अनंत शांति प्राप्त करें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान पिता, आज के पवित्र मिसा बलिदान अर्पित कर रहे हैं फादर चमाकला उदयपुर डायसिस के विजी सभी फादरगण के लिए प्रार्थना करते हैं। ईश्वर की आशीष एवं कृपा हमेशा बरसते रहे, ताकि वे ईश्वरीय शक्ति पाकर अपने लोगों को विश्वास में आगे बढ़ाते रहें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हमारी प्रार्थना सुन। आज हम पिता ईश्वर से सिस्टर प्रेमा के दुखित परिवार के सभी सदस्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेषकर फादर अरविंद, फादर अरुण, फादर राजू, सभी रिश्तेदार प्रियजन यहाँ पर उपस्थित हैं। इस दुखित समय पर ईश्वर सबों को हिम्मत और सांत्वना प्रदान करे। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हम उन सभी सदस्यों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं जो सिस्टर प्रेमा को उनकी बीमारी के समय में निस्वार्थ भाव से मरिया भवन में सिस्टर की सेवा एवं मदद किए। ईश्वर उनके व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में जरूरत आशीष प्रदान करे। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हमारी प्रार्थना सुन। हम तहे दिल से प्रार्थना करते हैं हमारे परम आदरणीय मदर जनरल सिस्टर रोशन, प्रोविंशियस और सभी सिस्टर जो यहाँ उपस्थित हैं और जो यहाँ उपस्थित नहीं हैं, लेकिन उनकी प्रार्थना और दिलासा हमारे इस दुख के घड़ी हमारे साथ है। दयालु ईश्वर सबों को आशीष और कृपा प्रदान करे। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हमारी प्रार्थना सुन। हम प्रार्थना करते हैं आप सबों के लिए जो यहाँ उपस्थित हैं, आपके प्यार, हमदर्दी और प्रार्थना के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। विशेषकर मरिया भवन के सभी सिस्टर जो सिस्टर प्रेमा की ज़रूरतों को पूरा किए। हम ईश्वर से दुआ करते हैं कि आप सब ईश्वर के असीम प्यार को सब समय अनुभव करते रहें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारी प्रार्थनाएं तेरे चरणों में हम अर्पित करते हैं। विशेषकर सिस्टर प्रेमा की आत्मा को तो उन्हें अनंत शांति प्रदान कर। हम उनके परिवार के लिए तथा समय समाज के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, सिस्टर प्रेमा को उन्हें एक उत्तम दान के रूप में इस परिवार को दिया है। सिस्टर के जीवन के द्वारा हमें कृपाएं प्राप्त हुई है। सबों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और हम विश्वास करते हैं सिस्टर प्रेमा स्वर्ग में विराजमान होकर हमारे लिए मध्यस्थ करेगी, हमारे लिए प्रार्थना करेगी और हमारे जीवन के संघर्षों में हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत बने रहेगी। यह प्रभु हम सब पर अपनी आशीर्वाद प्रदान कर हमारी जरूरतों पर अपनी आंखें खोल दे, ताकि हम जीवन के हर समय महसूस करें कि आप जीवितों का प्रभु है, हमारे साथ चलने वाला प्रेमी ईश्वर है। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। Amen.
प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारा यह बलिदान ग्रहण करे और हमारे पिता अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए हे प्रभु, अपनी सेविका सिस्टर प्रेमा के निकट रह इनके दफन के अवसर पर हम तुझे शांति बलि अर्पित कर रहे हैं। यदि तेरी सेविका पर किसी पाप का कलंक या कोई मानवीय अपराध रह गया हो तो कृपा पूर्वक उसे क्षमा प्रदान कर और मिटा दे। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। यही है संसार की मुक्ति, मानव जाति के जीवन और मृतकों के पुनरुत्थान। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूतों की सेना तेरे प्रताप की आराधना करती और तेरे सम्मुख सदा सर्वदा हर्ष मनाती है। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी उल्लास पूर्वक तेरा स्तुति गान करते हैं। Hymn number 357 हे जग का स्वामी ईश्वर, उसका नमन करो, शत शत नमन करो, सबसे पावन मनोहर सुंदर गगन तारा उसकी महिमा, ये प्रभु तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन भारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी बांदी भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कारक, जो तुम्हारे और भक्तों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो।
विश्वास का रहस्य। जब ये रोटी खाते हैं हम, ये कटोरा पीते हैं हम, तेरे आने तक हे प्रभु तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं हम, मृत्यु की घोषणा करते हैं हम। इसलिए है प्रभु हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हम सब क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष देव प्रसाद और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में स्थिर बना दे। हे प्रभु, अपने सेविका सिस्टर प्रेमा की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, इन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुई थी, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। प्रिय भाई और बहनों, हर इंसान इन संसार में एक संदेश छोड़कर जाते हैं। हम सब जानते थे कि सिस्टर प्रेमा को ऐसे एक पीड़ा था, एक बीमारी ले गई थी और इसका दर्द हमारे समझ से परे है। फिर भी जब भी हम सिस्टर से मिलते थे, सिस्टर कहती है ठीक है, और अपनी क्रूस को सहर्ष स्वीकार किया। हम दूसरों को बोलते हैं ईश्वरी इच्छाओं को पहुंचानो स्वीकार करो, लेकिन जब हमारे जीवन में कुछ आने पर हम दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। लेकिन सिस्टर प्रेमा हमसे कहती है अपनी क्रूस को स्वीकार करो, खुशी से अपनी यातनाओं को, मुसीबतों को स्वीकार करो। ये प्रभु यीशु कृष्ण जीवन ईश्वर के पुत्र ध्वनि पिता की इच्छा के अनुसार और पवित्र आत्मा के सहयोग से अपनी मृत्यु द्वारा संसार को नव जीवन प्रदान किया है। अपने इस पावन शरीर तथा रक्त के द्वारा तू हमारे अपराध क्षमा कर और हमें हर बुराई से बचा। हम सदा तेरी आज्ञाओं का पालन करते रहे और तुझसे कभी अलग न हो जाए। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप कर लेता है, बुलाए जाते हैं क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करता रहे। आमीन।
जाओ दूर मन से हे प्रभु जाओ अब दूर खो जा मैंने उधर सारा पाया न मैंने तुम सा सहारा खो जा मैंने उधर सारा पाया न मैंने तुम सा सहारा तुम ही मेरे जीवन के प्राण तुम ही मेरे जीवन के प्राण मेरी आशा करना न चूक ना जाओ दूर मन से मेरे हे प्रभु न जाओ अब दूर न जाओ अब दूर तुम ही मेरे जीवन मोती संजोए रखूंगा जीवन में मेरे तुम ही मेरे जीवन मोती संजोए रखूंगा जीवन में मेरे पाई तुमसे सारी खुशियाँ पाई तुमसे सारी खुशियाँ ओ मेरी आँखों के नूर न जाओ दूर मन से हे प्रभु न जाओ अब दूर न जाओ अब दूर मैं हूँ तुम में तुम हो मुझ में ऐसा होवे जीवन मेरा मैं हूँ तुम में तुम हो मुझ में ऐसा होवे जीवन मेरा होगा मेरा जीवन सारा होगा मेरा जीवन सारा तेरे आनंद से भरपूर न जाओ दूर मन से मेरे हे प्रभु न जाओ अब दूर न जाओ अब दूर सत्य को स्वीकार करना मुश्किल होता है और मौत एक ऐसी सच्चाई है और मौसी सिस्टर प्रेमा हमारे बीच नहीं रही, यह एक सत्य है। आज जब हम उनकी इस अंतिम विदाई में सहभागी होने के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं, आप सभी ने अपनी उपस्थिति से सिस्टर प्रेमा के लिए, उनकी आत्म शांति के लिए प्रार्थनाएं की है और हम सभी परिवार के सदस्य के प्रति अपनी सहानुभूति दिखाई है। आज मैं परिवार की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे विश्व स्वामी जी का भले वे आज यहाँ पे उपस्थित नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी प्रार्थनाओं के माध्यम से और अपने शब्दों से हमें दिलासा दिया है।
साथ ही आज के मुख्य याजक आदरणीय फादर जॉर्ज चमकला, जिन्होंने भली भांति मौसी के बारे में शुरू में बताया कि किस प्रकार का उनका व्यक्तित्व था, किस प्रकार का उनका स्वभाव था और किस तरह से उन्होंने उस स्वभाव को अपने जीवन के द्वारा चरितार्थ किया। फादर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ फादर स्टीफन रावत को, जो हमारे आज के इस समारोह में, अंतिम विदाई के समारोह में प्रभु के वचन को हमारे बीच रखा और साथ ही सिस्टर मौसी प्रेमा के जीवन को हमारे सम्मुख रखा। फादर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही यहाँ पर उपस्थित सभी पुरोहित भाईगण, जिन्होंने अपनी उपस्थिति से न केवल सिस्टर प्रेमा के लिए प्रार्थना की है, लेकिन हमारा भी हौसला बढ़ाया है और हमें भी इस दुख की घड़ी में उबरने के लिए अपने शब्दों को, अपने वचनों को हमें दिया है, ताकि हम इस दुख से उबर सके। साथ ही हमारे बीच में सभी सिस्टर्स, सिस्टर प्रेमा के कम्युनिटी के, विशेष रूप से FSMA संस्था के, संघ के सभी धर्म बहनें जो आज यहाँ पर नहीं है, विशेष रूप से सिस्टर रोशन मदर जनरल, सिस्टर प्रोविंशियल सिस्टर इशप्रिया, और साथ ही जब वे जीवित थी उनके अन्य जो कार्यकारिणी सदस्य रहे हैं, जिन्होंने सिस्टर का मार्गदर्शन किया, उनका सहयोग किया उनके कार्य में, मैं आप सभी सिस्टर्स का हृदय से आभारी हूं। साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जब सिस्टर प्रेमा रतनपुरवा से बीमार होकर के इस तरफ आई, जयपुर में सिस्टर प्रतिमा, सिस्टर सिसिली ने उनकी पूरी देखभाल की, और जब वे वहां से जयपुर से यहाँ शिफ्ट हुए हमारे भवन में, सिस्टर मौली, साथ ही सिस्टर जेमा, जिन्होंने पूर्ण रूप से उनका स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए हर जरूरत उनकी पूरी की है, और साथ ही उनके ट्रांसफर के बाद सिस्टर विमला, सिस्टर किरण और सिस्टर जया, जो हर समय उनके साथ रहती थी और उनका पूरा पूरा ध्यान रखते थे। सिस्टर, हम सभी परिवार वाले आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पे रहने वाली अन्य सभी सिस्टर्स, चाहे वो मरे भवन की हो, चाहे वो स्कूल कम्युनिटी की हो, उन्होंने समय समय पे उनका ध्यान रखा है, उनकी केयर की है। मैं आप सभी का हमारे परिवार की ओर से धन्यवाद अदा करता हूँ। साथ ही जो इनमेट्स यहाँ पे हैं, जो लड़कियां हैं, वो हमेशा उनके साथ रहती थी, समय पे खाना देना, दवाएं देना और हर चीज़ में उनका सहयोग करती थी। मैं उनका भी हमारी ओर से आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ विशेष रूप से हमारे पल्ली पुरोहित फादर जेम्स का, जिन्होंने एक शांत स्वभाव से हर कार्य को, हर गतिविधि को देखा है और उसके लिए समय समय पे सिस्टरों से संपर्क कर व्यवस्था की है। फादर जी, हम सभी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। साथ ही मैं याद करता हूँ हमारे अन्य कॉन्वेंट्स के सिस्टर जी यहाँ उपस्थित हैं और समय समय पे जब मौसी जीवित थी आकर के उनसे मिलते थे, उनके इस दुख में आकर के उनसे बातें करते थे और उन्हें प्रेरित करते थे, उन्हें उत्साहित करते थे। आप सभी कॉन्वेंट्स PSA हो, चाहे SSPS हो या अन्य सिस्टर्स, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आखिर में मैं याद करता हूँ
हमारे उदयपुर पल्ली के सभी पल्ली वासियों को जो आज यहाँ पे उपस्थित है, जो नहीं हो पाए हैं, कई कारणों से व्यस्त हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपका भी योगदान उनके जीवन में रहा है। मैं आप सभी को पूरे दिल से धन्यवाद देता हूँ। एक बार पुनः आप सभी को विशेष रूप से FSMA सिस्टर्स को हमारी ओर से भी हम हमारी संवेदना प्रकट करते हैं और साथ ही हर एक चीज के लिए, हर एक बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। Expression of heart which urges us to offer without reserve to all who deserve it. Today, on behalf of Sister Ishpriya, our Provincial Superior, and FSMA Sisters of T3 community, I express heartfelt gratitude to Father George Chama, the VG of Udaipur Diocese, and Father Arvin, Father Arun, nephews of Sister Prema, Father James, our parish priest, who concelebrated the Eucharist for the repose of the soul of our dear Sister Prema. Needless to say, the presence of the family members of Sister Prema, especially Mr. Anil, her brother, sisters, are a great solace to us all. We are touched to see the immense love you have for our dear Sister Prema, to whom you have come from Tanla to bid farewell today. I am sure Sister Prema will intercede for all of us from heaven and ask Jesus to shower abundance of blessings upon all the family members who are united with us in the spirit of prayer. I thank T3 school community always being there for us, providing your full support and help without fail. I also ask now and extend my heart gratitude to those who played helpful role in various ways in the wake of passing away to our dear Sister Prema. I am grateful to Mr. Alfonso, Mr. Daniel, for being there always to see to the minute details for the last journey of our sisters. Last but not the least, a big thank you to all our FSMA sisters who have come from far and near to bid farewell to our dear Sister Prema. God bless us all. धन्यवाद के मनोभावों के साथ हम ईश्वर से प्रार्थना करें, अपने संतों के साथ उन्हें अनंत आलोक से आलोकित कर, क्योंकि तू दयालु है। ये प्रभु अपने संतों के साथ उन्हें आनंद विश्रांति प्रदान कर और उन्हें आनंद आलोक से आलोकित कर, क्योंकि तू दयालु है। हम प्रार्थना करें। ये प्रभु ईश्वर, तेरे पुत्र ने हमें इस संस्कार में दिव्य संफल दिया है। इसी से बल पाकर हमारी बहन सिस्टर प्रेमा ख्रिस्त के आनंद भोज में भी सहभागी बन जाए, जो युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों पर अपना आशीर्वाद प्रदान करें। मृत व्यक्तियों को दफनाना अपना कर्तव्य समझकर हम हमारी मौसी सिस्टर प्रेमा की लाश लाए हैं। हम भरोसे के साथ पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जो सभी प्राणियों में जीवन का संचार करता है, जो शरीर आज क्षीण दशा में दफनाया जा रहा है, उसे ईश्वर पुनरुत्थान के दिन बल देकर पुनर्जीवित करे और हमारी मौसी सिस्टर प्रेमा को संतों की संगति में रखे। न्याय के समय वह इनके प्रति दया भाव रखे। ये मृत्यु से मुक्त होकर सभी ऋण से छुटकारा पाकर पिता से मेल मिलाप कर ले।
भले गडेरिये की संगति में पधारे और सब संतों के साथ अनंत जीवन प्राप्त करें। देर न हो, अब देर न हो, प्रभुवर के दूतों संतों, स्वागत कर इस आत्मा को, अर्पित आप करें प्रभु को। हे ईश्वर के संतों, उसकी सहायता करने आइए। हे प्रभु के दूतगण, उसकी अगुवानी करने आइए और उसकी आत्मा ग्रहण कर ईश्वर के सम्मुख पहुंचा दीजिए। दूत उठाकर इब्राहिम की गोद में इसको सुसज्जित करें। प्रेम भरे निज का कमलों से प्रभु इसका अर्पण ले ले। कृष्ण ने तुम्हें बुलाया है, वही तुम्हारा स्वागत करे और स्वदूत तुम्हें इब्राहिम की गोद में ले जाए। उसकी आत्मा ग्रहण कर ईश्वर के सम्मुख पहुंचा दीजिए। हे प्रभु, इनको शांति अपार, चमके इस पर प्राण प्रकाश, स्वागत करे दूत संत सब, पहुंचे अब यह स्वर्ग निवास। हे प्रभु, उसे अनंत शांति प्रदान कर, उसे अनंत ज्योति से आलोकित कर, उसकी आत्मा ग्रहण कर ईश्वर के सम्मुख पहुंचा दीजिए। हे दयालु पिता, तेरे हाथों में हम अपनी मौसी सिस्टर प्रेमा की आत्मा सौंप देते हैं। हमारा दृढ़ विश्वास है कि अंतिम दिन ये उन सब के साथ जो क्रिस्त में मर गए हैं जी उठेंगी और क्रिस्त के साथ अनंत काल तक जीती रहेंगी। इस जीवन में इनके प्रति किए गए तेरे सभी उपकारों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। इन वरदानों ने हम सब के प्रति तेरा स्नेह और संतों के साथ हमारा भाईचारा प्रकट किया है। हे प्रभु दयापूर्वक हमारी प्रार्थना सुन, स्वर्ग का द्वार हमारी मौसी सिस्टर प्रेमा के लिए खोल दे। हम सबों से ये बहन सिस्टर प्रेमा विदा हो गई है। विश्वास भावना से हम एक दूसरे को उस समय तक दिलासा देते रहे जब तक कि ख्रिस्त से हमारा पुनर्मिलन न हो। इस बात ही हम तुझसे और हमारी मौसी सिस्टर से सदा सहित रहेंगे। जय जय तेरा स्वागत गाकर दुस्वर्ग द्वार खोल दे, आकर अमर शहीद तुझे भी नए यरूशलेम ले चले। दूत संत प्रभुवर के सारे गावे तेरा जय जय गान, बस इस सदा तो अमर शांति में जहां लास्ट महान। अंतिम दर्शन के लिए कतारबद्ध आइएगा और फिर यहाँ पर कॉफिन बंद हो जाएगा, तो सभी दर्शनार्थी कृपया यहीं पर सिस्टर के दर्शन कर लीजिएगा। हे मेरे जन, विदा ले रहा हूँ पिता के भवन, मैं जा रहा हूँ स्वर्गीय गे, मैं जा रहा हूँ स्वीकारने आज अनंत जीवन। स्वर्गीय पिता का प्रेम मैंने दिखाया, अब जा रहा हूँ मैं वो स्वर्ग धाम। स्वर्गीय पिता का प्रेम मैंने दिखाया,
अब जा रहा हूँ मैं वो स्वर्ग धाम। हे मेरे जन विदा ले रहा हूँ, पिता के भवन मैं जा रहा हूँ। स्वर्गीय गेट मैं जा रहा हूँ, स्वीकारने आज अनंत जीवन। मिट जाएंगे ये सुख धन सारा, साथ रहेगा ही निर्मल प्रेम। मिट जाएंगे ये सुख धन सारा, साथ रहेगा ही निर्मल प्रेम। हे मेरे जन विदा ले रहा हूँ, पिता के भवन मैं जा रहा हूँ। स्वर्गीय गेट मैं जा रहा हूँ, स्वीकारने आज अनंत जीवन। के साथ जो मर जाएगा, क्रिस्त के साथ ही जी उठेगा। क्रिस्त के साथ जो मर जाएगा, क्रिस्त के साथ ही जी उठेगा। हे मेरे जन विदा ले रहा हूँ, पिता के भवन मैं जा रहा हूँ। स्वर्गीय गेट मैं जा रहा हूँ, स्वीकार मेरे जन विदा ले रहा हूँ। पिता के भवन मैं जा रहा हूँ, स्वर्गीय गेट मैं जा रहा हूँ। स्वीकारने आज अनंत जीवन। स्वर्गिक पिता का प्रेम मैंने दिखाया, अब जा रहा हूँ मैं वो स्वर्ग धाम। स्वर्गिक पिता का प्रेम मैंने दिखाया, अब जा रहा हूँ मैं वो स्वर्ग धाम। हे मेरे जन विदा ले रहा हूँ, पिता के भवन मैं जा रहा हूँ। स्वर्गीय गेट मैं जा रहा हूँ, स्वीकारने आज अनंत जीवन। मिट जाएंगे ये सुख धन सारा, साथ रहेगा ही निर्मल प्रेम। मिट जाएंगे ये सुख धन सारा, साथ रहेगा ही निर्मल प्रेम। हे मेरे जन विदा ले रहा हूँ, पिता के भवन मैं जा रहा हूँ। स्वर्गीय गेट मैं जा रहा हूँ, स्वीकारने आज अनंत जीवन।
मर जाएगा, क्रिस्त के साथ ही जी उठेगा। क्रिस्त के साथ जो मर जाएगा, क्रिस्त के साथ ही जी उठेगा। हे मेरे जन विदा ले रहा हूँ, पिता के भवन मैं जा रहा हूँ। स्वर्गीय गए मैं जा रहा हूँ, स्वीकारने आज अनंत जीवन। दीपक जो जल रहा था प्रभु की पावन वेदी पर, जलते जलते मिट गया है वो, जग ज्योति में समा गया है। दीपक जो जल रहा था प्रभु की पावन वेदी पर, जलते जलते मिट गया है वो, जग ज्योति में समा गया है। रो रही है आज कलीसिया, आहें भर रही है बलिवेदी। रो रही है आज कलीसिया, आहें भर रही है बलिवेदी। आहें भर रही है बलिवेदी। दीपक जो जल रहा था प्रभु की पावन वेदी पर, जलते जलते मिट गया है वो, जग ज्योति में समा गया है। सर्वशक्तिमान ईश्वर ने हमारी बहन सिस्टर प्रेमा को इस संसार से बुला लिया है, इसलिए हम उसका शरीर इस मिट्टी में रख रहे हैं जिससे ये बनाया गया था। मृतकों में सर्वप्रथम ख्रीस्त जी उठे। हमारा विश्वास है कि ख्रीस्त हमारे नश्वर शरीर को पुनर्जीवित कर अपने महिमामय शरीर के समान बना देंगे। हम लोग अपने बहन सिस्टर प्रेमा के लिए प्रभु से निवेदन करें कि वह इनको अपनी परम शांति में निवास में ले जाए
और उनकी देह को अंतिम दिन पुनर्जीवित करे। हे सर्वशक्तिमान पिता, तूने अपने पुत्र यीशु को मृतकों में से जिलाया। हम पूरे भरोसे के साथ तुझसे प्रार्थना करते हैं, अपने विश्वासियों को मुक्ति प्रदान कर। आपका अनुवाक्य है पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हमारी बहन सिस्टर प्रेमा को बपतिस्मा में अनंत जीवन की जमानत मिली थी। अब अपने संतों की संगति में उनका स्वागत कर। हमारी प्रार्थना सुन। इन्होंने ख्रीस्त का शरीर अनंत जीवन का भोजन ग्रहण किया था। इनका शरीर अंतिम दिन पुनर्जीवित हो जाए। हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने मृत भाई बहनों, संबंधियों और उपकारों के लिए प्रार्थना करते हैं। वे सब तेरे प्रत्यक्ष दर्शन करें। हमारी प्रार्थना सुन। जो अपने प्रियजनों की मृत्यु पर शोक मनाते हैं, विशेष करके सिस्टर प्रेमा के परिवार के सदस्य, उन्हें तू कृपा करके सहायता और दिलासा दे। हमारी प्रार्थना सुन। हम सबको जो तेरी उपासना करने यहाँ एकत्रित हुए हैं, तू अपने प्रतापमय राज्य में बुला ले। हमारी प्रार्थना सुन। हम हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम लिया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा रोटी का आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराध को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। माता मरियम अपने बहन सिस्टर प्रेमा की आड़ रक्षा करे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण के साथ है, दुनिया के स्त्रियों में और दुनिया के गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे। जैसे पुराने में किया गया। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं, मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं, मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं। संग संग चलो प्रभु जी मेरे, संग संग चलो प्रभु जी मेरे, संग संग चलो प्रभु जी मेरे, संग संग चलो प्रभु जी मेरे। निर्बल हो प्राणी प्रभु हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने 3 दिनों तक कब्र में रहकर अपने भक्तों की कब्र पवित्र की है। इसलिए हम विश्वास करते हैं कि यद्यपि हमारा शरीर इस पृथ्वी के गर्भ में रखा जाता है, हम तेरे समान ही जी उठेंगे। हमारी बहन सिस्टर प्रेमा का शरीर इस कब्र में उस घड़ी तक विश्राम पूर्वक पड़ा रहे, जब तू जो पुनरुत्थान और जीवन है, हमारी इस बहन को पुनर्जीवित और आलोकित न कर दे। हे प्रभु, स्वर्ग राज्य में ये तेरे मुखमंडल की ज्योति से सुशोभित रहे, जहाँ तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। जय जय तेरा स्वागत गाकर दूत स्वर्ग का द्वार खोल दे।
आकर अमर शहीद तुझे भी नव यरूशलेम ले चले। दूत संत प्रभुवर के सारे गावे तेरा जय जय गान। बसे तू सदा अमर शांति में जहाँ लाजरूस धनी महान। Shine upon her. I will never forget you, my people. I have called you on the palm of my hand. I will never forget you. I will not leave you orphan. I will never forget my own. Eternal rest grant to her, O Lord, and let perpetual light shine upon her. Does a mother forget my own? Eternal rest grant to her, O Lord, and let perpetual light shine upon her. I will gather you from the nations. I will bring you back into your land. I will sprinkle clean water. I will give you new spirit. You'll be mine forevermore. Eternal rest grant to her, O Lord, and let perpetual light shine upon her. हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, राज्य आवे तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरा फल यीशु। हे संत मरिया ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। राम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया ईश्वर की मां, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए
अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि ईश्वर की दया से शांति में निवास, मृत विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में निवास करें, आमीन। हे करुणा सागर प्रभु, तू दिन दुखियों का आश्रय है और उन्हें सांत्वना देता है। तो अपने दुखी जनों को दिलासा दे। तू ही जीवनदाता और मृत्यु विजेता है, अब सदा सर्वदा और अनंत काल तक। मृतकों को प्रभु शांति दे, अनंत जीवन पाने दे। मृतकों को प्रभु शांति दे, अनंत जीवन पाने दे। अंतिम दिन में है प्रभु महिमामय तू जब आए, तेरी दाहिनी ओर रहूं, संतों संग आशीष पाए। प्रभु और तेरी सूली को नतमस्तक हो आराधे। सलीब सबका उत्थान है, सलीब में ही जीवन है। आकाश धरती सब तेरी, मृतक जीवन पाने दे। जिंदे तुझ में निरत रहे, आश्रय सबका होने दे। मृत लोगों के पापों को मिटा के उनको जीवन दे। ज्ञान स्नान के पानी से सब जन तेरी संतान है।
मृत लोग तेरी काया को एवं पावन लहू को स्वीकार लिया पृथ्वी में, स्वीकारो अब आकाश में। बोई बीज जो मिट्टी में, उगते वर्षा बूंदों से, सुनकर तुरही की आवाज मृतक सारे जी उठे। पिता सुनो पवित्र आत्मा, मृतकों को नव जीवन दे। शैतान शक्ति दूर करो, जीवन ज्योति दान करो। न्यायाधीश है यीशु तू, दे दो मुक्ति पापों से। न्याय विधि से बचा ले तेरे नश्वर भक्तों को। हे प्रभु, तू अपनी कृपा से हमारे पापों को मिटा दे और हमें आशीष दे। तेरा अनुग्रह हमें संभाले। तू ही जीवन दाता तथा मृत्यु विजेता है। तू ही जीवन का आधार तथा आत्मा का आशा केंद्र है, अब सदा सर्वदा और अनंत काल तक। आमीन। स्वीकार करना प्रभुवर मेरा, विश्वास पूर्वक सामने तेरे दास लोगों का बलिदान सारा। पूर्वजों का पावन बलिदान, जैसे तूने स्वीकार किया। स्वीकार करना प्रभुवर मेरा, विश्वास पूर्वक सामने तेरे दास लोगों का बलिदान सारा। अटारी में प्रेरितों का नम्र पूर्वक पावन बलिदान, जैसे तूने स्वीकार किया। स्वीकार करना प्रभुवर मेरा, विश्वास पूर्वक सामने तेरे दास लोगों का बलिदान सारा। आइए हम सभी मिलकर के प्यारी मौसी सिस्टर प्रेमा की आत्म शांति के लिए यह स्तोत्र दोहराते हैं। हे प्रभु, मैंने घर घर से तुझे पुकारा है। हे स्वामी, मेरी पुकार सुन ले। तू मेरी विनय के शब्दों पर तत्परता पूर्वक ध्यान दे। यदि तू अपराधों पर ध्यान देता रहता तो कौन तेरे सामने टिक सकता। तेरे पास पापों के लिए क्षमा है, मैं प्रभु पर भरोसा रखता हूँ। मेरी आशा उसके वचन पर है, मेरी आत्मा प्रभु की प्रतीक्षा करती है। पर ये जितना भोग को चाहते हैं, उससे भी अधिक मैं प्रभु को चाहता हूँ। इज़राइल प्रभु पर आशा लगाए रहे, क्योंकि प्रभु दया सागर है। उसके पास अपार मुक्ति है, वो इज़राइल और उसके अपराधों से उद्धार करेगा। हे प्रभु, तू अपनी सजीव एवं जीवनदायी वाणी से मृत लाजरस को जिलाया था। वही हमारे इस बहन सिस्टर प्रेमा को न्याय विधि के दिन जिलाए और तेरी दाहिनी धर्मियों के साथ खड़े होने की कृपा दी। हे करुणा सागर, तू जीवन का स्वामी, अब सदा सर्वदा और अनंत काल तक। ओ मसीह, सबके प्रभुवर, तेरे दूसरे महिमामय पूर्ण आगमन के समय जब मोक्ष का द्वार खुल जाएगा, सारे मृत लोग कब्रों में से जी उठेंगे और तू धर्मियों को अधर्मियों से अलग करेगा। उस महिमामय क्षण में तेरे इस भक्त सिस्टर प्रेमा पर दया दृष्टि डाल और इसे स्वीकार कर, जिससे इसे भी उसी मोक्ष राज्य का उत्तराधिकारी बना जो धर्मियों के लिए जगत के आरंभ से तैयार कर रखा है। आज के इस दिव्य कर्म में भाग लिए हम सभी पर, सारे विश्व पर, कलीसिया और उसके संतानों पर तेरी कृपा तथा अनुग्रह की निरंतर वर्षा हो, अब सदा सर्वदा और अनंत काल तक। हे हमारे पिता, जो स्वर्ग में
तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराध को क्षमा करते हैं, और हम परीक्षा में डाल परंतु बुराई से बचे। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु आपके साथ है, धन्य आप स्त्रियों में और धन्य आपके गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, यीशु की मां, प्रार्थना कर हम पाप के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। मृत विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में रहे। आमीन। मृत विश्वासियों की आत्माएं, मृत विश्वासियों की आत्माएं प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया हालेलुया हालेलुया।